Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a deductive reasoning based set which I've taken from previous year actual papers. And the set says a popular restaurant chain organized a culinary recruitment competition where each contestant had to prepare three dishes: main course, dessert, starter. Each dish was evaluated out of 100 marks. A final score out of 400 was computed for each contestant using the following formula. Final score is equals to 2 into marks in main course plus marks in dessert plus marks in starter. Contestants who scored less than 70% marks in two or more dishes were disqualified. From the remaining contestant, the top four with the highest final score were selected as junior chef. If four or fewer contestants qualified, all who qualified were selected. A total of 10 contestants participated. Their marks are given in the table. However, there are the following facts are known. No two contestants had the same final score. Arnav was the only contestant with the highest marks in dessert. Among the four selected, Chef Jia had the lowest final score. Isha was selected. Deepak, Hiral, and Isha all scored the same marks in starter. Isha and Jay both scored full marks in exactly one dish, and Jay's final score was 50 points higher than Isha's. क्वेश्चन नंबर वन भी पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू चार स्टेटमेंट दिए हुए क्वेश्चन नंबर टू बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स चार स्टेटमेंट दिए हुए क्वेश्चन नंबर थ्री बोला हुआ इफ ऑल द कंटेस्टेंट except Arnav and Deepak had different marks in main course and Bharat's final score was lower than Chitra's. What is the maximum mark Bharat could have scored in the main course? Question number four bola hua, if all the contestants scored different marks in dessert, what is the maximum marks that Hiral could have scored in dessert? ठीक है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट मतलब 2018 का ये सेट है जिसका एक सिमिलर टेम्पलेट का हमने ये सेट क्रिएट करा हुआ है ठीक है इस सेट के अंदर क्या हो रहा है कि देर आर 10 शेफ जो कि ये कलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका एक स्कोर फाइनल स्कोर तैयार किया जा रहा है यूजिंग अ फॉर्मूला वेयर the score given to them in main course will be multiplied by 2 and that will be added with the score of dessert and starter and then eventually they'll get a final score and that will be evaluated out of 400. अब 400 में से जो मेन कोर्स का 100 इंटू 2 हो जाएगा और बाकी दो का 100 और 100 मिला के 400 बन ठीक है अब अपने को यहाँ पे कह दिया है कि भाई कोई ऐसा बंदा जिसका स्कोर 70% से कम होने वाला है दैट पर्सन अगर दो और दो से ज्यादा डिश में वो पर्सन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा कंटेस्टेंट हु गेट लेस देन 70 मार्क्स इन एनी इन टू और मोर डिश वर डिस्क्वालिफाइड लेस देन 70% बोले तो मतलब यहाँ पे बात हो रहा है 70 मार्क्स की एग्जैक्ट ठीक है 70 से कम वाले यानी कि अगर किसी बंदे का 100 से 100 मतलब क्योंकि पूरा 100 है अगर वो 70 से कम दो डिशेस में फॉर एग्जाम्पल अर्नव की बात करें अर्नव का देखो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है भरत का देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी यानी कि भरत एक ऐसा है जो कि डिस्क्वालिफाइड है ठीक है अच्छा सिमिलर में चित्रा का वी कैन नॉट से एनीथिंग दीपक का कैन नॉट से एनीथिंग ईशा का कैन नॉट से एनीथिंग फरा का कुछ नहीं कह सकते जिया का नहीं कह सकते हिरल का नहीं कह सकते इधर नहीं कह सकते इधर नहीं कह सकते ठीक भरत का हमने भरत का एकदम क्लियर कट कह दिया बिकॉज भरत का दोनों में 70 से कम है बाकी जितने भी हैं अच्छा चित्रा का भी इनफैक्ट देखो दो जगह पे मेरे को अभी दिखा 70 से कम है तो चित्रा इस समवन जो कि सेलेक्ट नहीं होगी ठीक है दीपक के बारे में अभी हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं ईशा के बारे में देखो दो जगह पे 70 से ऊपर है एक जगह पे 70 से कम है फरा इज ऑल्सो एलिमिनेटेड क्यों क्योंकि उसका 35 और 50 है ठीक है अच्छा जिया के बारे में नहीं पता ईशा के बारे में नहीं पता ईशा के अलावा जय के बारे में भी अपने को यहाँ पे नहीं पता बिकॉज इनका एक एक स्कोर दिया हुआ है ठीक है अब अपने को कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे वी आर सपोज्ड टू फिल द एंटायर टेबल। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इनका जो फाइनल स्कोर है, उस पे दिमाग लगाते हैं। जैसे चित्रा का आई कैन क्लियरली सी द फाइनल स्कोर। चित्रा का स्कोर कितना हो जाएगा 95 इंटू 2 व्हिच इज़ 190। 190 प्लस 20 यानी कि 210, 210 प्लस 60 यानी कि 270। यानी कि इसका जो स्कोर है वो क्या होना चाहिए था 270 होना चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली ईशा के लिए वी कैन डिटरमाइन द हर कंपोजिट स्कोर कितना होना चाहिए 60 60 का डबल 120 120 प्लस 80 200 200 प्लस 90 यानी कि 290 ठीक अच्छा वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन फॉर फरा फरा का 70 75 का डबल कितना होता है 150 150 प्लस 50 200 और इधर कितना हो गया 235 ठीक है बाकी का किसी का हम पता कर पाएंगे क्या बाकी के लिए तो यार ऐसा लिख पाना तो पॉसिबल अपने पास यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये तो नहीं है बाकी देखो
अर्नब के लिए अभी ये नहीं पता, भरत के लिए नहीं पता, तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पे डिटरमाइन फिलहाल नहीं होने वाली, ठीक है? अब चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 एंड लेट्स सी क्या हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है नो टू कंटेस्टेंट हैड द सेम टोटल स्कोर। कोई भी 2 कंटेस्टेंट ऐसे नहीं थे जिनका जो फाइनल स्कोर है वो बराबर होने वाला है, ठीक है? अभी तक अपने को 3 का फाइनल स्कोर मिला और तीनों का अलग-अलग दिख रहा है। अच्छा, अर्नब वाज़ द ओनली कंटेस्टेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इन डेज़र्ट। अर्नब था जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिले होंगे डेज़र्ट में, ठीक, यानी कि ये मार्क्स। हाईएस्ट क्या हो सकता था? इस वाले में डेज़र्ट पे 90 देखो अभी तक बेस्ट है, 90 से ऊपर क्या हो सकता था? या तो 95 या तो 100 होना चाहिए था, इन दोनों में से एक। यानी कि अगर मैं बात करूँ अर्नब का अभी स्कोर कितना है 40, 40 का डबल 80, 80 प्लस 80 कितना होता है 160, ठीक है? 160, 160 में मैं अगर 100 ऐड करता हूँ दिस बिकम्स 260 और अगर मैं 95 ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स 255। इन अ वे बोथ आर पॉसिबल, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे एज़ इफ नाउ डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, आई विल वेट, ठीक है? पॉइंट नंबर सी, अमंग द 4 सेलेक्टेड शेफ जिया हैड द लोवेस्ट फाइनल स्कोर। अच्छा, जो 4 लोग सेलेक्ट हुए इसमें जिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? चलो अपन ना जिया को ग्रीन से हाइलाइट करते चलते हैं कि जिया इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? जिया इज़ वन ऑफ देम एंड जिया के बारे में बोला है कि उसका जो फाइनल स्कोर है वो सबसे लीस्ट था जो 4 शॉर्टलिस्ट हुए उनमें, ठीक है? जिया का सो फार फाइनल स्कोर कितना है 140, ठीक है? प्लस 30 यानी कि 170 के ऊपर कुछ होना चाहिए। कितना होना चाहिए नहीं पता। 170 के ऊपर कितना जा सकता है? 100 देने पे 270 जाता, ठीक है? अगर जाता बट वो तो हम नहीं दे सकते बिकॉज़ 270 इज़ ऑलरेडी देयर। 95 देने पे कुछ जाता, 90 देने में ऐसे बहुत कुछ हो सकता, ठीक है? थोड़ा और पढ़ते हैं। ईशा वाज़ सिलेक्टेड, ईशा भी सिलेक्ट हो गई है, यानी कि 2 लोग जो सिलेक्ट हो गए हैं अभी तक अपने को तो ये दिख रहा है। ईशा का सिलेक्ट होने का रीज़न मतलब इसका इन दोनों जगह पे किसी दोनों जगह पे अपने को 70 से ज़्यादा स्कोर देना पड़ेगा बिकॉज़ ईशा का 70 से कम यहाँ पे एक जगह पे आ चुका है। सो ईशा नीड्स टू स्कोर 17 बोथ मतलब मोर देन 17 बोथ द सेक्शन, तभी वो क्वालीफाई की होगी एंड ओवरऑल ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? दीपक, हीरल एंड ईशा स्कोर्ड सेम मार्क्स इन स्टार्टर। दीपक, हीरल एंड ईशा स्कोर्ड सेम मार्क्स इन स्टार्टर्स। 1, 2, 3 जगह पे सबका ये सेम नंबर है। वो सेम नंबर क्या है? अभी तो यार पता कर पाना यहाँ पे अगेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लास्ट पॉइंट देखो डी अभी तक यूज़ हुआ है, ई को यूज़ हुआ है, ठीक है? लास्ट पॉइंट ईशा एंड जय बोथ स्कोर्ड फुल मार्क्स इन एक्ज़ैक्टली 1 डैश। ईशा और जय दोनों को एक स्कोर मतलब एक जगह पे, तो जय इज़ वन ऑफ देम। तो जय का जो एक डिश है वो तो यही होने वाला है, यानी कि जय का जो टोटल स्कोर है कितना बन जाएगा? 100 का डबल कितना होता है? 200, 280, 280 प्लस 70 यानी कि 350, यानी कि 350, ठीक है? तो ईशा एंड जय, ठीक है? ईशा भी है जो कि किसी एक जगह पे 100 पाई होगी, वो यहाँ पे या यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, एंड जय फाइनल स्कोर वाज़ 50 पॉइंट हायर देन ईशा। अच्छा, जय का जो फाइनल स्कोर है वो 50 पॉइंट ज़्यादा था ईशा से, यानी कि ईशा का स्कोर क्या होना चाहिए? 300 होना चाहिए था, ठीक? अब यार ये समझते हैं, अगर ईशा का स्कोर 300 है, तो इनमें से कोई एक स्कोर 100 होना पड़ेगा। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है? 100 या तो ऐसा होना चाहिए था 100 इन 2 व्हिच इज़ 200, ठीक है? प्लस 40 जो कि तुम्हारा कितना बन जाएगा? 240। उस केस में यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? स्टार्टर पे देना पड़ेगा 60, तभी वो 300 बनेगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? उस केस में 40 भी एक ऐसा हो जाएगा जो कि लेस देन 70 है और 60 भी एक ऐसा हो जाएगा व्हिच वुड बिकम लेस देन 70। तो बाय दैट लॉजिक मैं 100 यहाँ पे नहीं दे सकता। तो 100 कहाँ पे देना पड़ेगा? यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक? अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 देना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों स्कोर अपने क्या थे? बराबर थे, ठीक है? एंड क्योंकि ये 100 है, ये 40 है, यानी कि 140 यानी कि रिमेनिंग क्या था 160। 160 कैसे बना होगा? 80 से बना होगा, ठीक है? 80 का डबल 160, 160 प्लस 40 200 और 100 परफेक्ट, ठीक है? अच्छा, जय का भी सिलेक्शन होगा क्योंकि यार ईशा का सिलेक्शन हुआ और ईशा से ज़्यादा स्कोर करने वाला पर्सन जय। तो जो 4 लोग सेलेक्ट हुए उनमें से 3 तो मिल गए। जिया इज़ वन ऑफ देम, ईशा इज़ वन ऑफ देम, जय इज़ वन ऑफ देम। आल्सो वी नो दिस कि जिया इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट स्कोरर इन दैट टॉप 4 वाले स्लैब में, ठीक है? अच्छा, थोड़ा वो अपन और दिमाग लगाते तो अभी मेरा क्या है पॉइंट नंबर ई, एफ, बी यूज़ हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विथ पॉइंट नंबर ए, बी, सी। अब ये 3 पॉइंट है जिसको अपने को रीयूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? चलो थोड़ा-सा और दिमाग लगाते हैं। अब अपने पास यहाँ पे आरव पे बात करते हैं बिकॉज़ आरव का अपने को हिंट बचा। आरव के बारे में क्या पता? आरव का जो स्कोर होना चाहिए था इट हैज़ टू बी मोर देन 90
विच कैन बी 95 और इट हैज़ टू बी क्या कहते हैं 100 ऐसा, ठीक है। अच्छा, जिया का स्कोर क्या हो सकता है 70 से ज़्यादा, देखो 70 एक जगह पे, तो यहाँ पे इट हैज़ टू बी मोर देन 70 और यहाँ पे 30 यानी कि 140 प्लस 30 170 ठीक है। अब 170 में आई कैन ऐड समथिंग जो कि यहाँ पे अपने को काम भर का करे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना 70 एंड 70 इज़ 140 140 प्लस 30 ठीक है। 140 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 140 और 30 कितना होता है? 170 170 में अगर मैं क्या 70 तो मिनिमम ऐड करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अगर मैं 70 ऐड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा? 70 ऐड करने पे दिस विल बिकम तुम्हारा आ जाएगा 70, 70, 140, 210 और 240। यार प्रॉब्लम क्या है ना 240 तो यार नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ईशा ऑलरेडी है जो कि दिख रहा है कि प्रोबेबली शी वुड आल्सो क्वालीफाई बिकॉज़ यहाँ पे क्राइटेरिया भी क्वालीफाई हो रहा है और इसका 300 से कम है, ठीक है। ईशा वुड आल्सो क्वालीफाई ठीक एंड प्रोबेबली ही वुड आल्सो क्वालीफाई अर्नव को भी क्वालीफाई कर सकता है बिकॉज़ 40 का डबल कितना होता है? एंड दिस गाय इज़ आल्सो क्वालिफाइड दीपक, दीपक का स्कोर देखिए कितना बन रहा है, ये भी अपने को मिल चुका है, इसको लिख देते हैं। तो मे बी दिस विल हेल्प मी। 40 का डबल 80, 80 प्लस 100 180, 180 प्लस 75, 180 प्लस 75 यानी कि 255 होना चाहिए था। 255 ठीक है। फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ 40, 40 का डबल इज़ 80, 80 प्लस 75 कितना होता है? 155 एंड 255 अच्छा, ज़रा इधर चेक करें आई थिंक यहाँ पे अपने को मिल रहा था 40 का डबल कितना होता है? 80, 80 का डबल होता है 160 ठीक है 40 का डबल इज़ 80, 80, 80, 60, 160 160 में अगर मैं 100 ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स 260 और अगर मैं 95 ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स 255 व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ 255 इज़ ऑलरेडी ओवर हियर एंड आई कैन नॉट गिव लेस देन 95 बिकॉज़ 90 इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हियर। तो यानी कि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 100 ठीक। यहाँ पे 100 देने का मतलब 40, 80, 80 एंड 80 160 एंड 260 ठीक, परफेक्ट। अच्छा, अर्नव इज़ आल्सो एलिजिबल टू गेट क्वालिफाइड बट अभी क्या दीपक भी बाहर हो जाएगा बिकॉज़ रैंकिंग वाइज़ बात करें तो दीपक तो है ही नहीं ना पिक्चर में। तो जो टॉप 4 क्वालिफाई करने चाहिए वो प्रोबब्ली ऐसे हो सकते हैं कि अ, चित्रा भी सॉरी ईशा हैज़ टू बी वन ऑफ देम जो क्वालिफाई करेगी। यानी कि ये क्वालिफाई करेगी, चौथा पर्सन ईशा होने वाली है एंड अ, हीरल भी बाकी है अभी, ठीक है। इसके लिए आई एम नॉट श्योर ये होगा कि नहीं होगा मतलब दिस इज़ रुकता हूँ ना थोड़ा मेरे को इस पे रुकना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये क्वालिफ़ाई करेगी नहीं, बट इतना पता है कि ईशा का स्कोर कितना है। जिया का स्कोर देखते हैं एंड देन फिर क्योंकि इसका लॉजिक है तो पूरा तो नहीं बनने वाला ये तो पता है, ठीक है। जिया के बारे में क्या पता है 70, 70, 140, 140 और 30 कितना होता है? 140 और 30 होता है तुम्हारा 170 170 पे 70 ऐड करूँगा तो 240 240 में पंगा क्या है ये क्वालिफ़ाई कर जाएगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मेरे को बेयर मिनिमम क्या देना पड़ेगा? 170 पे मैं अगर 100 ऐड करता हूँ व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे को 95 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं 95 ऐड करके कितना बन जाएगा? 70, 140, 140 एंड 30 170, 170 में 90 ऐड करने पे 260 एंड 265 ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 95 देना पड़ेगा, ताकि इसका स्कोर बन जाए 265 ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखना यहाँ पे अगर मैं 100 देता हूँ तो प्रॉब्लम करेगा इस चीज़ से बिकॉज़ ये बंदा यहाँ पे टॉपर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं 95 से नीचे देता हूँ, तो मतलब इसका स्कोर बन जाएगा 260 और टाई हो जाएगा बिटवीन अर्नव एंड जिया। और जिया अपने को पता है कि शी हैज़ क्वालिफाइड एंड शी वाज़ द बॉटम स्कोरर। यानी कि इसके अलावा जो क्वालिफाई करने वाला पर्सन है वो ईशा ही है। यानी कि जो 4 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो है एक ईशा जिया, ये और ये 4 लोग, ठीक है। दिस इज़ नॉट रैंक ये ध्यान देना ना ये रैंक नहीं लिखी जस्ट दैट आई हैव मेंशन हू आर दोज़ 4 पीपल हू हैव क्वालिफाइड ईशा, जिया, ईशा ये वाली और ये जिया और ये ईशा और ये जय, ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विथ भरत वाला ये पार्ट, हीरल वाला ये पार्ट। यार ये दोनों को अपने को पता कर पाना मुश्किल है थोड़ा क्योंकि अपने को कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। और क्योंकि इसका दिया हुआ है तो यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये तो पार्ट ऐसा छूट रहा होगा। नाउ लेट्स सी कि अपन और क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन पे अपने पास क्या दे रखा है एंड उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू।
ठीक है, जय's फाइनल स्कोर वाज़ हायर देन दीपक। जय का फाइनल स्कोर दीपक से ज़्यादा था। जय का फाइनल स्कोर इज़ 350 और दीपक का फाइनल स्कोर इज़ 9, ये तो गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ना? तो जय's फाइनल स्कोर वाज़ हायर देन दीपक, ये तो ट्रू है मतलब। जय का स्कोर इज़ हायर। ईशा स्कोर्ड फ्यूअर देन चित्रा इन मेन कोर्स। ईशा का स्कोर मेन कोर्स में सी से कम है। ईशा स्कोर्ड फ्यूअर मार्क्स, हाँ, ये भी ट्रू है। जय स्कोर्ड हायर देन ईशा इन स्टार्टर। जय स्कोर्ड हायर देन ईशा इन स्टार्टर। जय ने ईशा से ज़्यादा स्कोर करा है स्टार्टर्स में। जय ने स्टार्टर में ईशा से ज़्यादा नहीं करा, यानी कि क्या होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि पहला 2 ट्रू है। ठीक। फिर चलो कॉलिंग मस्ट बी फॉल्स पूछा हुआ है। अ, चित्रा स्कोर्ड हायर देन भरत इन मेन कोर्स। चित्रा स्कोर्ड हायर देन भरत इन मेन कोर्स। चित्रा का स्कोर भरत से ज़्यादा है। नहीं पता, मस्ट बी फॉल्स तो नहीं है। हीरल्स फाइनल स्कोर वाज़ लोअर देन फराज। हीरल्स फाइनल स्कोर, यार ये भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। भरत ज भरत फाइनल स्कोर वाज़ लोअर देन ईशा। भरत फाइनल स्कोर वाज़ लोअर देन ईशा। यार ये भी कन्फर्म तो नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा बना सकते हैं क्या? अगर मान लो भरत का स्कोर यहाँ पे 100 दे देते, तो 100 का डबल हो जाएगा 200, 200, 200 और इधर हो जाएगा 310 शायद। भरत एंड जय स्कोर्ड सेम इन द मेन कोर्स। भरत और जय ऐसा मेन कोर्स में। यार भरत और जय स्कोर्ड सेम इन द मेन कोर्स। अगर भरत और जय का सेम हो जाएगा मेन कोर्स, तो दिस विल बिकम 200, ठीक है? एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस 200 अ, दिस विल बिकम कितना? 300 का स्कोर, है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज़ कांट, हाँ, ये यार ये तो गलत हो गया ना, ये सही है। ये आंसर होना चाहिए, मस्ट बी फॉल्स में तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कैसे फिर से बताता हूँ, देखो मैंने ऑब्जर्व करा, अगर मैं इधर 100 दे देता हूँ, तो दिस विल बिकम 200 प्लस 45 प्लस 55। इन दैट केस द फाइनल स्कोर ऑफ भरत विल बिकम 300 व्हिच विल कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट नंबर ए, जिसमें कि 2 लोगों का स्कोर बराबर हो जाएगा और वो 2 लोग कौन होंगे? भरत और ये ईशा, ये वाली। ठीक है, तो बाय दैट लॉजिक बाकी 3 ऐसे थे जिसके बारे में यार डिटरमाइन कर पाना मुश्किल था। बट ये पॉइंट ऐसा था जिसमें फॉर श्योर दिख रहा था यार ये तो मस्ट बी फॉल्स होएगा ही होएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑल द कंटेस्टेंट एक्सेप्ट अर्नव एंड दीपक हैड डिफरेंट मार्क्स इन मेन कोर्स। जितने कंटेस्टेंट है सबका अलग-अलग मार्क्स था मेन कोर्स में। ठीक है? अर्नव और दीपक का छोड़ के बाकी सबका डिफरेंट था। ठीक है? एंड भरत फाइनल स्कोर वाज़ लोअर देन चित्रा। भरत का जो फाइनल स्कोर है वो चित्रा से कम है। चित्रा से कम मतलब 270 से कम होना चाहिए। ठीक है? देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कोर भरत कुड हैव इन मेन कोर्स? मेन कोर्स में भरत का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है? अभी ऐसा है ना कि 270 से कम करना है। 270 से कम करने का मतलब 260 ही लेना पड़ेगा या 250, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा बिकॉज़ इन दोनों का सम 100 हो जाता है। अभी अगर मान लो मैं ले लेता हूँ ऐसा 270 से कम कितना होगा? 270 से कम ले लेते हैं 260। 260 पे, क्योंकि अपने को यहाँ पे इवन नंबर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 मार रहे होंगे, बस बेसिकली वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा होगा। तो इधर अगर 100 है तो 100 माइनस करने का मतलब 270 माइनस 100 कितना होता है? 170, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, 160 कर सकते हैं क्या? 160 करने का मतलब 80, 80, 80 कर सकते हैं क्या? 80 नहीं कर सकते बिकॉज़ ईशा का स्कोर 80 है, ठीक है। 75 भी नहीं कर सकते, 75 भी नहीं, 70 भी नहीं कर सकते। 65 होना चाहिए, हाँ 65। 65 में देखो करेंगे तो 65 इंटू 2 130 और रिमेनिंग 230 व्हिच इज़ लेस देन ये, और सबका स्कोर भी अलग हो जाएगा। तो यानी कि इसका स्कोर क्या होगा? 130। आई होप दिस लॉजिक इज़ क्लियर विथ, है ना? पीछे जाके देख लेना, मतलब बेसिकली यार इसका टोटल स्कोर 270 से कम चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल द कंटेस्टेंट्स स्कोर डिफरेंट मार्क इन डेज़र्ट। डेज़र्ट में सबका अलग-अलग है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क दैट हीरल कुड हैव स्कोर्ड इन डेज़र्ट? एच का सबसे अलग स्कोर क्या होने वाला है? 100 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 80 हो सकता है क्या? 80 होने के लिए इधर 25 का 100 और 100 और 50 150। 150 में अगर मैं 80 भी है ही है, अगर मैं 150 में 80 के बाद 75 भी है, 70 ऐड करता हूँ तो 220, व्हिच इज़ पॉसिबल। तो आंसर क्या करेंगे? 70। यार ये तो बहुत आसान था, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 220, इसका आंसर 65 होगा ना, ये मैंने गलत लिखा था। 130 तो इनका टोटल स्कोर बना, ठीक है। आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट सेट, मतलब एग्ज़ाम वाले फेज़ में ऑब्वियसली जब ये था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया। एंड
अगर आपको ये मिलता है तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया से। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।